students, welcome to the class of maths. In last lecture we have discussed regarding with the minors. Okay, so how can we just find out the minors of the given determinant that we have seen in the our previous lecture. So we have taken the one determinant over there and we have found out the all the minors of each and every element which was present in that determinant. Okay, so this is nothing but the determinant regarding with the minors. Okay, तो फिर जैसे ही हमने हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल लिया तो फिर वो एलिमेंट्स के प्लेसेस पे उनके माइनर्स यहाँ पर आ गए. So this determinant is called as the minor determinant. Okay, then next concept which was present over there, that is nothing but the cofactors. So how can we just find out the cofactors of these elements or whatever the elements given into the our original determinant? Okay, so simply for finding out the values of the cofactors of those elements, there is the formula, that is nothing but the cofactor of A11 is equals to A11 means first element, first row first column का जो भी element रहेगा that is nothing but the जो भी original determinant था वहां पर का ये place वाला element. Okay, so cofactor of A11 is equals to -1 to the power. First of all अभी क्या रहेगा, formula for the cofactors is -1 to the power of I plus j into m ij. Okay, m is nothing but the minor, so simply see over here -1 to the power I plus j means we have to add the number of row and number of column which is present over here, that is -1 to the power 1 plus 1 and m to the base ij means into m to the base 1 1. Okay, so simply see over here -1 to the power 1 plus 1 means 2, -1 का square plus 1, so m11 is nothing but the -3. So value of the cofactor of A11 is nothing but the -3 only. Okay, then next is regarding with the cofactor of A12. It depends on you कि आप कोई भी ले सकते हो, A21 जो भी सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, that doesn't matter. तो फिर सिर्फ और सिर्फ वहां पर सब के सब एलिमेंट्स मींस 9 के 9 एलिमेंट्स जो भी प्रेजेंट है उन सब के cofactors हमने फाइंड आउट करना है, that's it. Okay, then see over here as it is a to the base 1 plus 2, so it will be the -1 to the power 1 plus 2 into m12. So -1 to the power 3, this will be the -1 का cube -1 only, so simply -1 into m12 is nothing but the -6, so simply -1 into -6 will be +6. Then regarding with the 1 3, this will be the -1 to the power 1 plus 3 into m13 रहेगा, m13 is nothing but the -3. Okay, then this will be the -1 to the power 1 plus 3 is 4, so simply -1 to the power 4 1 into -3 it will remain -3 only. Okay, ये same cofactor of A13. Then next is cofactor of 21 is equals to -1 to the power 2 plus 1 into m21 means -6. Okay, so this will be the -1 to the power 3, that is nothing but the -1 only, so -1 into -6, so this will become the +6. Okay, then next is cofactor of A22. This will be the -1 to the power 2 plus 2 into -6, so -1 to the power 4 1 into -6 -6. Okay, then
नेक्स्ट इज 823 -1 to the power 2 plus 3 into -6. 2 plus 3 is nothing but the 5. So -1 to the power 5, it will be the -1 only. So -1 into -6 plus 6. Then in that same manner, A31, A32, A33 क्या होगा, सब कुछ देख लेते हैं. -1 to the power 3 plus 1 into A31 की वैल्यू -3. So it will be the 3 plus 1 means 4. So -1 to the power 4, 1. 1 into -3, -3. -1 to the power 3 plus 2 into -6. So 3 plus 2 is nothing but the 5. So -1 to the power 5 -1. -1 into -6 plus 6. Then over here 3 means -1 to the power 3 plus 3 into -3. So it will be the 3 plus 3 is 6. So -1 to the power 6, 1. 1 into -3, -3 only. ठीक है. अभी यहां पर से देखेंगे. सो विच काइंड ऑफ, और हमारा जो भी नया डिटर्मिनेंट रहेगा रिगार्डिंग विद द कोफैक्टर्स, तो फिर उसके जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे. First is -3. Excuse me. Second is 6. Third is -3. Fourth is 6. Fifth is -6. Sixth is 6. Seventh is -3. Eighth is 6. And ninth is -3. This will be your cofactors determinant. ओके तो फिर माइनस मिल गया, इसके बाद में कोफैक्टर्स मिल गया. अभी याद रखना कि ये जो भी प्रोसीजर फॉलो की है, जो भी मेथड फॉलो की है, दिस इज जस्ट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम. सो व्हाट अबाउट द एडवांस और मेंस एग्जाम, वहां पर अगर ऐसा करते बैठेंगे तो फिर पूरे पेपर भर सिर्फ और सिर्फ अपने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो हाउ टू सॉल्व द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन केस ऑफ द मेंस और द एडवांस एग्जाम. जब एमसीक्यूज वगैरह टाइप में आएगा तो फिर उस टाइम पे हमें ये क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट में सॉल्व करना है वो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे. ओके कुछ ज्यादा अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो भी मेथड है उस पर ध्यान दे दो तो फिर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. ओके तो फिर ये कैसा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी और हार्ड टाइप में तो है ही नहीं बिल्कुल भी. ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लेंदी है. तो फिर लेंदी होने के कारण क्या होता है कि कभी कभार एक भी जगह पे साइन का डिफरेंस आ गया तो फिर आगे का पूरा गलत हो जाएगा. ओके सो सिंपली फॉर दैट यू हैव टू जस्ट remember the method which I am just going to tell you. Okay so take one question, that is 1 to -3 1 to -3 -2 0 4 5 -1 3. Okay we have to find out the minors and cofactors of this determinant. Okay तो फिर अभी इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है सबसे पहले अभी वो इतना लिखते बैठने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है. अगर हम ऑब्जेक्टिव्स और एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं तो फिर उस टाइम पे डायरेक्टली हमें जो भी आंसर्स है उसके तरफ जाना है. ठीक है तो फिर सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक जगह पे सबसे पहले हमें करना क्या है, जो भी 4 ऑप्शंस गिवन होंगे तो फिर वो 4 ऑप्शंस में से अलग प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ रही है. मान लो कि ए ऑप्शन जो भी गिवन है कुछ तो भी बी सी डी ऐसा कुछ तो भी गिवन है. ओके यहाँ पर 1 1 1 1 हर एक जगह पे 1 है.
ठीक है, तो फिर ये प्लेस वाला छोड़ देंगे हम। दिस इज रिगार्डिंग द माइनस। अगर आपको बोला गया है जस्ट फाइंड आउट द माइनस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ओके। और अगर हम देखें तो फिर कोई भी रो वाइज जाओ या फिर कॉलम वाइज जाओ, कोई भी देख लो आप एलिमेंट्स, तो फिर अगर यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये आपको सेम मिल गया। अगर ये 3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर फिर से 3 है, यहाँ पर -3, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड जो भी एलिमेंट था, तो फिर वो फर्स्ट रो में का थर्ड एलिमेंट, इसमें हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो भी चेंज है। ठीक है, मान लो कि 2 ऑप्शंस और ये 2 ऑप्शंस इक्वल है, फिर भी अगर हम ये जो भी थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो फिर क्या हो जाएगा कि कोई तो भी 2 ऑप्शंस ये कट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि ये -3 का जब भी माइनर फाइंड आउट करेंगे, अगर वो +3 आ गया, ओके, तो फिर +3 मिल गया, सो दिस ऑप्शन विल गेट कैंसल आउट एंड दिस ऑप्शन विल गेट कैंसल आउट। ओके, तो फिर बचे कौन से ए और सी ऑप्शन। तो फिर ए और सी ऑप्शन में फिर से ढूंढो कौन सा एलिमेंट अलग है। सपोज यहाँ पे 5 और यहाँ पे -5 मिल गया, तो फिर से कौन सा, A2 2, तो फिर ये वाले एलिमेंट के लिए हम माइनर फाइंड आउट करेंगे। मान लो वो +5 आ गया, सो दिस विल बी द योर आंसर। हर एक जितने भी माइनस है या फिर जितने भी को फैक्टर्स है, वो सब के सब फाइंड आउट करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो फिर डायरेक्टली ऐसे ही कंपेयर कर करके हम डायरेक्टली फटाफट से आंसर निकाल लेंगे। ओके, ठीक है, ये रहा जब ऑप्शंस रहेंगे तब का एकदम सिंपल वे हाउ टू सॉल्व। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको प्रॉपर वैल्यू निकालनी है तो फिर कैसे निकालेंगे। ओके, जैसे ही ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर आपका थोड़ा सा अप्रोच भी डेवलप हो जाएगा, और आप ये जो भी कैलकुलेशंस है उसके लिए आपको हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, अभी जब आपको इसका माइनर फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है, पहले लिख लो लेफ्ट हैंड साइड में, मान लो दिस इज ए, सो माइनर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, सो ये 1 का फाइंड आउट करना है, सो सिंपली छोड़ दो। ठीक है, ये हाइड कर दिया, सो 3 0s are 0 माइनस, देखो 3 0s are 0 माइनस ऑफ 4 into -1 -4, so it will be the -+4 राइट नाउ। ठीक है, ये मिल गया हमें फर्स्ट एलिमेंट का। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट छोड़ दो, उसका रो उसका कॉलम, -2 into 3 -6 एंड -5 into 4 20, so -26। उसके बाद में ये छोड़ दो, so -2 into -1 +2 -0, so +2 will be आंसर। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, so 2 into 3 6 and minus plus means -3, so it will be the +3। उसके बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, so 3 1s are 3 minus 5 3s are 15 -15 means minus plus 15, so it will be the 18। Then second row third column छोड़ दो, so we'll get the 1 into -1 -1 minus 2 into 5 10, so it will be the -11। okay, इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, so 4 2s are 8 and this will be the 0, so 8। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 1s are 4 minus 3 2s are 6, so it will be the -2। उसके बाद में थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 0s are 0 minus plus 2 2s are 4। okay, so this will be the your determinant regarding with the minors of the given determinant। okay, तो फिर माइनस का डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, तो फिर ये ऐसे डायरेक्टली हर एक स्टेप लिखते बैठेंगे तो फिर और भी टाइम जाएगा। तो फिर इसकी वजह से डायरेक्टली हमें क्या करना है, यहीं पर से जो भी माइनस है वो डायरेक्टली फाइंड आउट करके ये डिटरमिनेंट में उसकी वैल्यूज पुट कर देने। सो विल गेट द डिटरमिनेंट ऑफ माइनस। देन व्हाट अबाउट द कोफैक्टर्स, दिस इज आल्सो मच मोर इजियर एज कंपेयर टू द माइनस। ये क्या है कि कोफैक्टर्स टोटली डिपेंड है किस पे, माइनस पे। कैसे, एज वी नो दैट कि कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या था,
-1 टू द पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, राइट। तो फिर ये किस पे डिपेंड है, i और j पे। एम आई जे मीन्स ये कुछ नहीं, M11 M12 ये जितने भी माइनस लिखे वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये -1 के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड रहने वाली है। ओके, तो फिर ये इसकी वैल्यू कब -1 आ रही है और कब +1 आ रही है वो देख लो। अगर +1 रहेगी तो फिर माइनस की और कोफैक्टर की वैल्यू वो रिस्पेक्टिव प्लेस के लिए एग्जैक्टली सेम रहेगी, लेकिन ये जब माइनस आएगी तब माइनस और कोफैक्टर की वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। फाइन, सो सिंपली देख लो, अभी ये वैल्यू जो भी है -1 टू द पावर i प्लस जे, ये पॉजिटिव कब आएगी और निगेटिव कब आएगी, जब i प्लस जे इवन रहेगा। तो फिर अगर i प्लस जे इवन रहा तो फिर -1 टू द पावर इवन नंबर इट विल बी दी +1, सॉरी हाँ, -1 की पावर अगर इवन नंबर ले लिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर इवन नंबर इट विल बी +1, और अगर -1 की पावर ऑड नंबर रहा तो फिर -1 इंटू -1 इंटू -1, तो फिर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो फिर हमें क्या मिलेगा, माइनस आंसर मिलेगा। तो फिर जब भी i प्लस जे की वैल्यू ऑड आती है, i प्लस जे की वैल्यू ऑड आएगी, तो फिर उस टाइम पे कोफैक्टर ये अपोजिट रहेगा, या फिर डायरेक्टली बोल देंगे कोफैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनर। ओके, तो फिर माइनर को उस टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लो अभी ऑड कब कब आती है, 1 1 मीन्स 2 हुआ इवन, 1 2 मीन्स 1 प्लस 2 3 हुआ, इट मीन्स ऑड, ठीक है। उसके बाद में 1 3 4 मीन्स इवन हुआ, छोड़ दो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सो 2 प्लस 1 3 ऑड हुआ, ले लो। उसके बाद 2 2 सो 4 इट विल बी द इवन, सो इट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा 4 इवन आया, तो फिर सेम रहेगी वैल्यू, छोड़ दो। 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 3 5, तो फिर यहां पर ऑड आई वैल्यू फिर से चेंज होगा। उसके बाद 3 1 मीन्स 4 हुआ इवन, 3 2 3 प्लस 2 5 ऑड आया, इसका मतलब इसका जो भी साइन है वो चेंज होगा। 3 3 3 प्लस 3 6 मीन्स इवन आया, इसका मतलब इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो फिर अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो भी 4 नंबर्स प्रेजेंट है, इन चारों नंबर्स की वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, या फिर उसकी जो भी साइंस गिवन है तो फिर वो साइंस अपोजिट हो जाएंगे। बाकी के सब अभी देख लो, 4 एज इट इज, 2 एज इट इज, उसके बाद 18 एज इट इज, 8 एज इट इज और 4 एज इट इज। आगे -26 का हो जाएगा +26, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 है तो फिर -3, -11 है तो +11, -2 है तो +2। okay, so this will be your determinant regarding with the cofactors of A. Is that clear? Okay, so this is the concept how to find out the minus and cofactors of a given determinant by the, अभी हमने एकदम डिटेल में जो भी स्टेप बाय स्टेप मैनर में भी है वो भी देख लिया, और अगर हमारे मेंस के वगैरह एग्जाम में आया तो फिर कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लिया। ठीक है, जैसे ही आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा वैसे तो और भी फटाफट से ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो then next concept which is present, that is nothing but the adjoint of a matrix. okay, तो फिर adjoint of a matrix मतलब exactly है क्या, ये समझ लो। अभी सिंपल है, यहां पर जो भी adjoint of a matrix है, adjoint of a matrix, this is nothing but the transpose of a matrix of cofactors. okay, अभी adjoint of a matrix बोलो या फिर adjoint of a determinant बोलो, that doesn't matter, सिर्फ और सिर्फ ये याद रख लेना कि यहाँ पर जो भी है हमें जो भी कोफैक्टर्स वाला डिटरमिनेंट या फिर मैट्रिक्स मिलेगा उसका अगर हम ट्रांसपोज ले ले तो फिर वो क्या हो जाएगा हमारा
adjoint of a given matrix. Okay, तो फिर simply this is nothing but the is equals to transpose of a मैट्रिक्स ठीक है, मैट्रिक्स लिखा है तो फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो फिर जो भी कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स हमें मिला था, तो फिर उसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर ले तो फिर वो क्या हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बट ट्रांसपोज याद आ रहेगा, ट्रांसपोज मतलब जो भी रोज रहेंगे वो सबके सब कॉलम्स बन जाएंगे, दैट्स इट। ओके, अगर हम वो चेंज कर लेंगे तो फिर जो भी रिजल्टेंट हमें मिलेगा दैट विल बी आवर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर अभी नहीं तो यही पे समझ लो कि अगर आपको मान लो कि कोफैक्टर जो भी मिले हैं तो फिर कोफैक्टर्स अगर ऐसे फॉर्मेट में मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइन, तो फिर जो भी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है दैट विल बी द एडजॉइंट इज इक्वल्स टू ये 1 2 3 सबके सब कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो फिर यहां पर क्या हुआ, जो भी हमारे रोज थे वो सबके सब कॉलम्स बन गए। ठीक है, तो फिर यही रहेगा कि ये जो भी है याद रखना है कि ये कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स है या फिर कोफैक्टर्स वाला डिटर्मिनेंट है। ठीक है, माइनस वाला नहीं। माइनस के वो अगर 4 एलिमेंट्स के साइन अगर हम चेंज कर दें तो फिर जो भी साइन चेंज करने के बाद जो भी मैट्रिक्स या फिर जो भी डिटर्मिनेंट मिलेगा उसका ट्रांसपोज हमें यहां पर फाइंड आउट करना है एंड दैट ट्रांसपोज विल बी द एडजॉइंट। गलती से कभी कभार हम माइनर्स का ही ट्रांसपोज ले लेते हैं, दैट विल बी द रॉन्ग। ओके, इज दैट क्लियर? फाइन। अभी डायरेक्टली हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है वो एक बार 2x2 मैट्रिक्स के लिए और एक बार 3x3 मैट्रिक्स के लिए देख लेंगे, 2 3 1 4। ओके, तो फिर सबसे पहले गिवन क्या है, ए मैट्रिक्स एज अ 2 3 1 4 इट इज गिवन ओवर देयर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, इसका हमें डायरेक्टली बोला गया है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट। तो फिर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसके माइनस फाइंड आउट कर लो और उसके बाद में हम क्या करेंगे, माइनस फाइंड आउट करने के बाद कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे और वो जो भी कोफैक्टर्स मिलेंगे उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। सबसे पहले अभी माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू, तो फिर क्या हो जाएगा देखो। अभी सबसे पहले पहला एलिमेंट यहां पर का अगर हमें माइनर फाइंड आउट करना है तो फिर उसकी रो उसका कॉलम छोड़ दो, तो फिर बचा क्या 4, राइट डाउन ओवर हियर। ठीक है, अगर यहां पर डिटर्मिनेंट मिल नहीं रहा है, जो भी एलिमेंट मिलेगा दैट विल बी योर माइनर। ये और भी थोड़ा सा इजी हो गया किसमें, हमारे 2x2 डिटर्मिनेंट और 2x2 मैट्रिक्स में। उसके बाद में 3 के लिए छोड़ दो 1, उसके बाद 1 के लिए छोड़ दो 3, 4 के लिए 2। ठीक है, सबके पोजीशंस अपोजिट हो गए, 2 4 की जगह 4, 2 की जगह 3, 1 की जगह 1, 3 की जगह। ठीक है, ये हो गया उसके माइनस। इसके बाद में कोफैक्टर्स ऑफ ए। अभी यहां पर देख लो क्या बोला था मैंने कि अगर वहां पर जो भी एडिशन है रिगार्डिंग विद द आई और जे अगर वो इवन आ रही है तो फिर वैल्यूज एग्जैक्टली सेम रहेंगे और अगर वो ऑड आई तो फिर क्या हो जाएगा, साइन चेंज। तो फिर देख लो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 हुआ, इसका मतलब एडिशन 2 विच इज इवन, तो फिर नंबर सेम रहेगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 मींस 1 + 2 3, तो फिर यहां पर 3 आया, इसका मतलब ऑड आया, इसका मतलब इसका साइन चेंज होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 एडिशन 3 ऑड, इसका मतलब इसका भी साइन चेंज। 2 2 मींस 4, इसका मतलब इवन आया, तो फिर 2 का साइन चेंज होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर 4 और 2 का साइन तो चेंज नहीं हो रहा है,
तो फिर साइन किसका चेंज हो रहा था, 1 का, मींस ये हो जाएगा -1 और इसका 3 का चेंज हुआ तो फिर -3। इज दैट क्लियर? तो फिर ये क्या मिल गए हमें, कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, तो फिर डायरेक्टली हमने साइन अपोजिट करके और ये दोनों का साइन एग्जैक्टली सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन किसका चेंज हो जाएगा, 1 और 3 का। उसके बाद में ये कोफैक्टर्स मिलने के बाद में नेक्स्ट आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इट इज नथिंग बट दी, अभी यहीं पर लिख देता हूं, कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो फिर विच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 4 -1 -3 2 का ट्रांसपोज। तो फिर अगर इसका ट्रांसपोज लिया तो फिर रो विल बी द कॉलम 4 -1 और कॉलम विल बी द रो। ठीक है, तो फिर ये जो कुछ भी मिला, दिस इज नथिंग बट द आर एडजॉइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो फिर ये हुआ और ये जो भी मेथड हुई, दिस इज नथिंग बट दी आर स्टेट बोर्ड मेथड। तो फिर जो भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में हमें जो भी मेथड से सॉल्व करना है, सो दिस इज द मेथड ऑफ दैट टाइप ऑफ एग्जाम। ओके, देन व्हाट अबाउट द मेंस और एडवांस, वहां पर देख लो। अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो फिर जो भी हमारा गिवन है ना, उसी पे डायरेक्टली उसका एडजॉइंट डिपेंड करता है। वो कैसे, देख लो। ए क्या गिवन है, 2 3 1 4। ठीक है, अभी यहां पर क्या है, याद रखना कि हमें जो भी इवन ऑड हमने देखा था ना यहाँ पे कोफैक्टर्स के टाइम पे, उसी तरीके से सबसे पहले देखना है। एक तो ये जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसमें 2 चेंजेस रहेंगे, एक साइन में और दूसरा पोजीशन में। ठीक है, अभी फर्स्ट साइन में चेंजेस, कौन से एलिमेंट्स के साइन में हमें चेंजेस करने हैं, जिसकी पावर इन द सेंस i प्लस j की वैल्यू ऑड आ रही है, उनके साइन हमें चेंज कर देना है। तो फिर i प्लस j की वैल्यू ऑड कब आ रही है, 1 + 1 2 इवन, 1 + 2 3 ऑड, तो फिर इसका साइन चेंज, 2 + 1 3 ऑड, साइन चेंज, 2 + 2 4, साइन रिवर्स है। ओके, तो फिर ये हो गया फर्स्ट के बारे में। साइन के लिए क्या रहेगा, i प्लस j मस्ट बी ऑड, तो फिर तब जाके क्या होगा कि उसका साइन चेंज होगा। फिर उसके बाद में रिगार्डिंग विद द पोजीशन, देन इंटरचेंज, लेकिन इंटरचेंज करना है यहां तक तो ठीक है। इंटरचेंज मतलब जो भी 2 एलिमेंट्स रहेंगे उनकी पोजीशन हमें इंटरचेंज कर देनी है, ये उसके जगह पे, वो इसके जगह पे। लेकिन वो किसके बारे में, जो भी एलिमेंट्स का हमने साइन चेंज नहीं किया है उन दोनों की हम पोजीशन चेंज कर देंगे। देखो अभी एग्जैक्टली 2x2 मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स रहेंगे, उनमें से 2 एलिमेंट्स का हमें साइन चेंज करना है और 2 एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। तो फिर कौन से 2 एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है, जिनकी i प्लस j की वैल्यू ऑड आ रही है, और किन 2 एलिमेंट्स की पोजीशन एक्सचेंज करनी है, जो 2 एलिमेंट्स का साइन हमने चेंज नहीं किया है, रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो फिर ये डायगोनल का हमने साइन चेंज कर दिया और ये डायगोनल को इंटरचेंज कर दिया। तो फिर ये इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 4 -3 -1 2, दिस इज नथिंग बट द एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। ओके, तो फिर ये सब कुछ मेथड करने के बाद भी आपको वही आंसर मिलेगा, और डायरेक्टली आप यहां पर से फाइंड आउट कर लोगे तो फिर भी आपको वही आंसर लगेगा। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगा, अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो फिर ये फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग विद द माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट। ओके, तो फिर on the basis of these all the factors, that is minus, cofactors and adjoint, as we have solved this 2x2 matrix or 2x2 determinant, in the next lecture we are just going to solve the 3x3 matrix और 3x3 determinant, वो हम next lecture में solve करेंगे। So you will get the clear idea regarding with the how to solve the questions regarding with the minus, cofactors and adjoint. Is that clear? Okay,
So you have to solve the questions regarding with these types, and while solving those questions, if you got any kinds of doubts, then you can just mention those doubts into the our WhatsApp group, or you can directly ask me those doubts when you just come into the class for the doubt session. Okay, so you will get the clarification regarding with those doubts at that time only. Okay, thank you so much. Bye bye, take care.